and who it is meant for. Okay, yeah, I will explain everything in this session. Share some PowerPoints. Okay, so is my screen visible? Mm, yes, sir. Yeah. Okay, so as Yashal told you all, that I'm currently pursuing my Erasmus Mundus joint master's degree in advanced solid mechanics. Uh, so I will be discussing in this outline. Firstly, I will tell you all about my background. Then I will introduce you about the Erasmus Mundus, what it is exactly, and what who is eligible for this program, and the application timeline, required documents, and what to do for the successful application, and what things you should avoid. So my introduction has already been covered by Ishal, that I'm from Pakistan, and I had the opportunity to complete my internship at A Star Institute, Singapore. Before that, before coming to the Erasmus Mundus scholarship here for the master's program, I was working in NUST University Islamabad as a lab engineer after my graduation. Here's my email if you want to contact me by email after this session, or whenever you want further guidance about the scholarship programs, you can contact me. Uh, I was thinking last night to present you about something for the SIPGA fellowship as well, and that I completed in Singapore. But unfortunately, this SIPGA fellowship has been discontinued uh, recently, so you won't be able to apply for this SIPGA fellowship. Basically, it was for the internships and for the thesis that you can conduct at the Singapore Institute of Research, but it has been discontinued now. Uh, in my master's program here through the Erasmus Mundus scholarship, I spent my first semester at University of Lille, Central Lille in France, and then I spent my second semester at National Technical University of Athens, Greece, uh, and then the third semester was at University of Calabria, Italy, and currently I am in Belgium at University of Catholic de Louvain. So the Erasmus Mundus is a 2 years program for masters, where you can spend each semester at a different institute across the Europe. It's it offers you a master's degree, and you can spend like each of your semester, like if the program is of 2 years, you will be studying for the 4 semesters, so you can spend each of the semester in a different institute, which is in the panel of the Erasmus Mundus program, and it's a fully funded scholarship with no tuition fees, and you can get 1,400 euros per month as a stipend, and everyone can apply for this prestigious program. It's a highly competitive program, but for, from the last, I guess, 2 3 years, Pakistan is the prominent one in securing these scholarships. Like last year, above 200 students got the scholarship. So mostly Pakistanis can secure the scholarship easily. For the eligibility criteria, you can apply in the final year of your bachelor's degree, or after graduating from your bachelor's program. Your academic background should be very strong, and your motivation for the program should be very clear. And work experience and publications are plus point, but it's optional. The most important thing is your academic background. इसमें
जीपीए की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मोस्टली सिलेक्शन जो फर्स्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग है वो आपकी जीपीए बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ जीपीए अबव 3.5, then you can then there are larger chances that you can get the scholarship. But if your GPA is less than 3.5 or 3, then you really need to show your other things like work experience. If you have a strong work experience related to that program, or if you have some publications, research publications, then you can secure this scholarship. Otherwise, if you don't have any, sorry, in the chat box, somebody is saying that no voice. Can you confirm me? Yes, sir, please. Is he not Uh, audible to anyone? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो दोबारा जॉइन कर सकता है प्लीज. So he may be audible to you. Okay, thank you. So I was talking about the work experience. तो work experience और publication सिर्फ उस केसेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और ज़रूरी है जब आपका सीजीपीए और एकेडमिक स्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। In my case, uh, I got the highest GPA in my batch, so it was very easy for me. I had no publication at that time, and I had only 1 year experience as a lab engineer at NUST. So it was very easy for me to secure this scholarship. Uh, application opens usually in November till January, and it really depends on the program. Some programs starts to open in the November, and some programs start to open in January. So like एक general window जो सी है application open होने की वो नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक रहती है। कुछ प्रोग्राम्स नवंबर में ओपन हो रहे हैं, कुछ दिसंबर में ओपन हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली दिसंबर 31 दिसंबर मोस्टली प्रोग्राम्स की डेडलाइंस होती हैं, या अगर दिसंबर में नहीं तो 31 जनवरी तक। So you can apply, start, you can start apply, or you can shortlisting the programs in November, and जब आप application process पूरा हो जाएगा, then they will contact you in March, April, or May, in these 3 months for the results or outcomes, and programs usually start in September. Now, how you can find the program is to go to visit this link. Is the official Erasmus Mundus catalog, and you can just go to this link. There are like 200 programs related to the every field. You can filter by your field of study, and then you can go to each website of the program, and then you can apply as well. सबसे ज़्यादा important इस Erasmus Mundus scholarship में relevancy है, that how relevant your program, how relevant the program is to your profile. Uh, Students are asking questions in the chat box. I will come to the questions at the end of this short presentation. You can keep asking the questions in the chat box. So इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो relevancy है. For example, if you are a civil engineer, then and if you have some research experience in a particular field, or if you have some working experience in a particular field, then that experience or that relevancy will be बहुत ज़्यादा will be highly important for your profile or for selection. So ये नहीं करना कि आप आपकी एक्सपर्टीज या आपकी जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और आप ट्रांसपोर्टेशन के किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह आपके चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतने मैक्सिमम इतने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। Like 3-4 years ago there was restriction that you can apply in maximum 3 programs and not more than 3, but now the restriction has been lifted, so you can apply in in many programs as you want.
लेकिन उसमें सिर्फ रेलेवेंसी का ख्याल रखना है। If the program is relevant to your profile, then you can apply. Because in my case, I applied only in 3 programs, and I got the interview call from 2 programs, and then got selection in the one uh, for scholarship पर। बाकी दोनों पे भी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन वहाँ पे सेल्फ फंडेड की ऑप्शन उन्होंने दी थी, फुली फंडेड की नहीं दी थी। तो जितने कम प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। लेकिन जो आपके प्रोफाइल से ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आप कम प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, उन्हीं एप्लीकेशंस को आप उसकी क्वालिटी पे फोकस करेंगे। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। क्वांटिटी पे जितने ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करते जाएँगे, आपकी क्वालिटी एप्लीकेशंस की उतनी कम होती जाएगी। So the screenshot here on the screen is from the official Erasmus Mundus catalog, the website that I shown you at this slide. So you can click on this slide on this website, and then you can open the Erasmus Mundus catalog, and here you can see the different kind of programs like Joint Master of Arts in Sound Design or Environmental Contamination and Toxicology. So then you can go to each program's website, and you can रिव्यू द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम से वेरी कर सकता है। उसमें मतलब कोई कोई हार्ड एंड फास्ट सबके एक ही क्राइटेरियाज़ नहीं है, डेडलाइन्स भी सबकी एक नहीं है। सो पहले सबसे आप इस पोर्टल में जाके यू कैन शॉर्टलिस्ट योर प्रोग्राम्स जो आपके प्रोफाइल के बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, एंड देन यू कैन लाइक शॉर्टलिस्ट 2 और 3 जिसमें आपने अप्लाई करना है, उसकी आपने डेडलाइन्स और सारी रिक्वायरमेंट्स एक शॉर्टलिस्ट कर लें, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर ईच वन ऑफ द प्रोग्राम। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या रहती हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो आपका सीवी है। सीवी, मोटिवेशन लेटर, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, uh, 2 or 3 letters of recommendation depends on the program, and then English proficiency proof for IELTS। some programs कुछ प्रोग्राम आपकी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आइल्स के अंदर फॉर एग्जांपल 6.5 बैंड मिनिमम होने चाहिए, 7 होने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में आप यूनिवर्सिटी से लेटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि योर बैचलर्स डिग्री वाज इन इंग्लिश। तो आप उसमें एक अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड करते हैं, दे कैन एक्सेप्ट दैट एंड द पासपोर्ट कॉपी ऑफ कोर्स। इसमें इन सब डॉक्यूमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ योर रिज्यूमे, सीवी। If your resume is not attractive, if your CV is not attractive, they won't read your motivation letter in depth or the other documents। तो सीवी के अंदर आपकी क्लैरिटी कह लें, कंसाइजनेस कह लें, वो आपकी उसके अंदर दिखनी चाहिए कि एक इंसान आपकी सीवी देख के उसको रिव्यू करते हुए वो आप रुका है वहाँ पे। और मोस्टली जो एरास्मस मुंडस प्रोग्राम्स हैं वो यूरोपास फॉर्मेट में सीवी माँगते हैं। तो Europass format is the Europass is the platform where you can create your CVs. So you can search it on Google, and you will find the relevant website. Motivation letter, yeah, I will explain some things in the next slides that what things you need to consider in the motivation letter. So if you're, for example, if you're applying for 3 programs, so तीनों program, for example, one program is related to the solid mechanics, the other program is related to the materials, and the third program is sorry, okay, Abdul Samad Khan. Okay, I will write it down. तो 3 प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और तीनों आपकी डिफरेंट थोड़ा-सा हट के हैं, आप आपस में एक मटेरियल से रिलेटेड है, एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो आपने अपने मोटिवेशन लेटर को हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली लिखना है। सिर्फ़ एक मोटिवेशन लिख के, जेनेरिक मोटिवेशन लेटर लिख के आपने सब में सबमिट नहीं करना। और मोटिवेशन लेटर में वो जो एक सोशल एस्पेक्ट्स है और बाकी एक डिफरेंट कहानियाँ बनाई जाती हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, उसको उसको टेक्निकल रखना है, प्रोग्राम स्पेसिफिक रखना है,
उस प्रोग्राम के गोल्स आपने वेबसाइट से देखने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, उसके कोर्सेज़ देखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने मोटिवेशन लेटर को अलाइन करना है। और एनी टिप्स और सक्सेस टिप्स के मोटिवेशन लेटर एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन का क्या होता है, अगर ये कोई भी आपको बताता है, he is not telling you right. Motivation letter should be unique and it varies from person to person. इसका कोई रूल नहीं है कि इस तरह मोटिवेशन लेटर लिखा जाएगा तो अ, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। सिर्फ जो चीज़ें एरास्मस में ख़्याल करना है वो ये है कि आपने जेनेरिक मोटिवेशन लेटर नहीं लिखने। हर प्रोग्राम की आउटलाइन के अकॉर्डिंगली आपने उसको टेलर करना है। And the second thing that I mentioned is I've already discussed that each and every document should be highly personalized to your profile कि आपने अपनी एकेडमिक जर्नी में एकेडमिक जर्नी में इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपने क्या चीज़ें की हैं, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, आपका क्या रिसर्च एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपने उन चीज़ों को डिस्कस करना है। इफ यू डोंट हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस you can mention your courses like the coursework that you have studied in your bachelor's in a way and your semester's project in a way that it shows that your semester projects and your courses are highly relevant to the master's program in which you are applying. And if you want to apply, then you can start early. Like अभी क्या जुलाई चल रहा है, you can start shortlisting the programs in the next month and you can हर एक प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन वहाँ पे मेंशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ मेंशन हैं। आप वहाँ से कंसल्ट करें एंड इस ये बेहतर है कि बजाय हर एक को रीच आउट करने के लिंक्डऑन पे, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के अलुमनाई को लिंक्डइन पे सर्च करें और उस अलुमनाई से या उस करंट स्टूडेंट से आप उस प्रोग्राम के बारे में या उसकी एप्लीकेशन के बारे में मज़ीद आप गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ से। क्योंकि हर प्रोग्राम एक ब बहुत बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोग्राम से डिफ़र कर रहा होता है। Second thing that is most important to mention is the use of AI or ChatGPT. Use of AI or ChatGPT is okay. For me, it's okay. You can use, but don't blindly use AI or ChatGPT in writing your motivation letter um, or your CVs. ब्लाइंड यूसेज नहीं करना, उसको आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। ब्लाइंड यूसेज से मतलब ये है कि आप एक जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट दो और वो आपको उसी तरह एक सारा का सारा एक आपको एक जेनेरिक मोटिवेशन लेटर तैयार कर दे और बहुत ही कोई वो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में जो जीपीटी वर्जन ऑफ इंग्लिश होता है उसके अंदर आपको प्रिपेयर कर दे। वो पढ़ने से पता चल जाता है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के रिव्यू के लिए मोटिवेशन लेटर्स आते हैं और वो इसी तरह ही पता लग रहा होता है पढ़ने से कि ये जीपीटी से लिखे हुए हैं। उसके लिए कोई आपको टर्निटिन से चेक नहीं करना पड़ता या कोई अ, एआई डिटेक्टर नहीं यूज़ करना पड़ता। वो पढ़ने से पता चल जाता है कि ये इंग्लिश किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। तो अगर आपने जीपीटी से लिख कोई हेल्प लेनी है, उससे सिर्फ़ आप रिव्यू करवा सकते हैं कि आप अपना एक लेटर लिखें, जिस तरह आप एक अपने किसी सीनियर को या एलुमनाई को रिव्यू करने के लिए मोटिवेशन लेटर भेज सकते हैं, देन यू कैन जस्ट राइट डाउन योर मोटिवेशन लेटर एंड देन यू कैन गिव इट टू द जीपीटी टू रिव्यू इट कि कोई पोटेंशियल मिस्टेक्स हैं, देन इट कैन टेल यू। Uh, and if you want some ideas or unique ideas, you can ask from GPT. कि ये मेरी प्रोफाइल है and I want to include these in my motivation letter. तो it can generate um, or it can give you some unique ideas. You can use the GPT or AI smartly, but don't fully prepare your motivation letter through GPT or AI. और फॉर्म फिल करते हुए इस वेरी जेनेरिक you should completely fill the form and Uh, second, the last thing is the recommendation letters. Recommendation letters are highly important. For example, if you are applying to the program related to the, um, for example, अगर मैं अपनी बात करूँ, I studied civil engineering and there are some different specialization like structural engineering. So my program was related to the structural engineering master's program. तो मैंने उस प्रोफ़ेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं जिसने मुझे उस
कोर्स से या उस मास्टर्स प्रोग्राम से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ा है, या उसका रिसर्च एक्सपीरियंस, उसके रिसर्च पेपर्स, उसकी रिसर्च प्रोफाइल उस प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो आपने उन प्रोफ़ेसर्स से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। इस तरह नहीं करना कि आपका कोर्स कौन-सा मैकेनिक्स के रिलेटेड है या सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, और आप किसी एक जेनेरिक जिसने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई है, आप उससे रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं। So just keep this thing in mind. The last thing is you can join me on LinkedIn by scanning this code. If you have further any question, like जो chat box पे question है उनको मैं consult कर देता हूँ. Okay. What do you mean by academic background? Academic background से मेरा मतलब आपका GPA था, कि आपका GPA should be strong enough. GPA as well as your relevance of your bachelor's to the master's program. कि आपका बैचलर्स इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग में है, तो वो आपकी जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फ़ॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। वन थिंग इज़ दिस, एंड सेकंड इज़ योर CGPA. If someone with 3.3 CGPA and 3 years R&D experience, then what are the chances of scholarship, and what matters the most in Erasmus? Is there any age limitation? There is no age limitation. Uh, like if you are even 40 years of age, you can apply, you can still apply, and you can get the scholarship. मेरे साथ कई colleagues हैं, they are in 40s, so they are doing masters in Erasmus, so there is no age limitation. There is no bond कि आपने वापस जाना है पाकिस्तान या अपने होम कंट्री, तो इस तरह की कोई लिमिटेशंस इस Erasmus मुंडा स्कॉलरशिप में नहीं है। बाकी अगर आपका CGPA 3.3 है और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो सो इट्स ओके, यू कैन गेट द स्कॉलरशिप इन द अच्छा, ये भी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि कुछ प्रोग्राम्स आपके सीजीपीए को ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, वो आपकी वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं। तो इट वेरीज़ फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। इन माय केस व्हेन आई वाज़ अप्लाइंग आई अप्लाइड इन 3 प्रोग्राम्स, एंड जो एक प्रोग्राम था उसमें से आई वाज़ अ I've saw लाइक उसकी मेरिट लिस्ट जब मैंने देखी थी, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट था वो पाकिस्तान से था, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी साहिवाल से, और उसका सीजीपीए वाज अबाउट 2.8, बट ही he had like 5 research papers in that particular field and 3 years of work experience. So उसको वो scholarship मिली थी, and he was on the first number of the merit list. So ये चीज़ें काफ़ी मैटर कर रही होती हैं। If you are in 5th or 6th semester, um, 5th और 6th सेमेस्टर, नॉट श्योर, नहीं 5th और 6th सेमेस्टर में आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप 7th सेमेस्टर में हो, जब आपका लास्ट फाइनल ईयर हो, देन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस ओपन इन लाइक ये नवंबर में ओपन होती हैं, तो इट विल बी योर 7th सेमेस्टर। तो जब आप 7th सेमेस्टर में हो, देन यू कैन अप्लाई। 5th और 6th में आप नहीं कर सकते। Student of MS completed, yes, you can, if you've already completed MS, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डबल मास्टर्स कर रहे हैं, और डबल मास्टर्स, लेकिन अगर आपने पहले से एमएस किया हुआ है पाकिस्तान से किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। अगर वो रेलिवेंट है उस प्रोग्राम से, तो उसमें आपके चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो अगर आपने एमएस ऑलरेडी कंप्लीट किया है पाकिस्तान से, देन यू कैन अप्लाई, एंड चांसेस भी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। ये 2.5 सीजीपीए वाला और एज लिमिटेशन वाला आंसर मैं पहले कर चुका हूँ। सेल्फ फंडेड मीन्स दैट उसमें आपको ट्यूशन फ़ी वो ऑफ कर देते हैं। आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी होती।
लेकिन आपने मंथली एक्सपेंसेस अपने लिविंग एक्सपेंसेस आपने खुद बेयर करने होते हैं। उसमें वो आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं देते। रिज़्यूमे एज़ अ सैंपल अ, इस अ, मोटिवेशन लेटर या रिज़्यूमे एक सैंपल के तौर पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अ, क्योंकि अगर आप इसलिए कह रहे हो कि कोई सक्सेसफुल एप्लीकेशन का पता चले कि कैसे होती है, इसका कोई लिंक नहीं है उससे। सिर्फ़ आपके एक नॉर्मल पैटर्न में एक सिंपल सी सीवी भी अगर आपको स्टिल अगर कोई इस तरह की चीज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे चाहिए, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड आई विल सी दैट व्हाट आई कैन सेंड यू और एज़ अ सैंपल। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड अ मोटिवेशन लेटर आर द सेम थिंग्स, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एक एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कुछ कुछ डिफरेंस जो है लिटरेचर में रिपोर्ट होता है, लेकिन एक रूटीन की एप्लीकेशंस में और जो जिस इंसान ने रिव्यू करनी है या जिसने देखनी है उसके उसके अकॉर्डिंगली ये कोई डिफरेंस नहीं है। मोटिवेशन लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आर सेम। मैंने जो पीएचडीज में भी अप्लाई किया था, motivation letter, statement of purpose, I've written everything in a same pattern. So it won't affect your profile or your application. वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत बाद के हैं। अ, एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप आपको अगर मिल भी गई है तो वीज़ा आपका उसकी गारंटी नहीं है। वीज़ा के लिए आपने अलग से अप्लाई करना है। एरास्मस आपके वीज़े के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ फॉर अप्लाइंग वीज़ा एंड एवरीथिंग। CV which was also selected for scholarship. अगर इस तरह का कोई सैंपल चाहिए, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन लिंक्डइन, आई कैन सेंड यू। 2 months before, it really depends on the person who is applying, अ, कि उसको कब स्टार्ट करना है। इफ यू कैन मैनेज इन 15 डेज़ यू कैन अप्लाई। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने एक रात में बैठ के ये मतलब देखा कि एप्लीकेशन ओपन है, देन अ, दिफ उन्होंने अप्लाई किया और वो स्कॉलरशिप उनको मिल गई है। तो इट 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 डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई आपको भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ी। तो उसमें रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, वो आप अपने प्रोफ़ेसर से आप बात करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अम, और रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें आपने हर प्रोग्राम जो अलग से लिख रहे हैं, वो भी आपका उसके अकॉर्डिंगली टेलर्ड होना चाहिए। वो एक जेनेरिक रिकमेंडेशन लेटर लिख के हर प्रोग्राम में सबमिट अगर आपका प्रोफ़ेसर आपको ईज़िली रिकमेंडेशन लेटर दे रहे हैं, तो आपने उससे हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। सिर्फ़ एक ही रिकमेंडेशन लेटर लिख के और उसमें एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट टॉप पे लिख के कि आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट फॉर द मास्टर्स डिग्री। तो ये इसको थोड़ा-सा अ, देखना है कि उसमें आपने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हो कि इस प्रोग्राम के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एंड उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके नीचे कुछ तारीफ़ें लिखी हों। तो वो इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा। जी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से पहले प्रिपेयर करने हैं और उसमें सबमिट करने हैं। इसमें भी कुछ प्रोग्राम्स आपसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स माँग रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में आप मोफा अटेस्टेड नहीं भी अगर सबमिट करवाते हैं, तो वो चल जाता है, वो वीज़ा के टाइम पे आपको चाहिए होते हैं। How to take a recommendation letter from a university, like what's the procedure? You can simply ask your professor who is teaching you some courses कि मुझे मैंने अप्लाई करना है एंड आई नीड रिकमेंडेशन लेटर। तो मोस्टली पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप रिकमेंडेशन लेटर खुद लिखते हो
and you go to them, or they just sign the recommendation letter for you. तो आपने लिखना खुद होता है और उनसे बस साइन करवाना होता है। तो यू कैन आस्क एनी ऑफ योर प्रोफेसर जिसके साथ आपकी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ही विल गिव यू। इसके सारों के सैंपल्स, आपके रिकमेंडेशन लेटर क्या है, सबके सैंपल्स आपको इंटरनेट से ही मिल जाएँगे, बट इफ यू नीड एनी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज़ वेल। सीजीपीए रिलेटेड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि कोई लिमिटेशन नहीं है अप्लाई करने के लिए तो। Uh, is this QR कोड इज़ नॉट वर्किंग, जो लिंक्डइन प्रोफाइल का कह रहे हैं? यस, पासपोर्ट इज़ कंपल्सरी फॉर योर एप्लीकेशन। सो अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो अभी से अप्लाई कर दें अपने पासपोर्ट्स के लिए, ताकि वो पाकिस्तान में 1-2 महीने तो लग रहे हैं पासपोर्ट आने में, तो जब तक एप्लीकेशंस हो तब आपका पासपोर्ट आपके पास हो। लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। In MS second semester, I don't understand this question. एप्लीकेशंस करंटली ओपन नहीं है। मैंने बताया कि एप्लीकेशन डेडलाइन नवंबर में ओपन होंगी। नवंबर, दिसंबर, इट वेरीज़ फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। प्लानिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप देख लें कोर्सेज़, वहाँ से आप कीवर्ड्स के तौर पे वहाँ पे कैटलॉग में जाके सर्च करें। देयर मस्ट बी सम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द प्लानिंग इंजीनियरिंग। इंटरव्यू इंटरव्यू आपका मतलब आपकी इसके इसके अंदर कुछ मतलब 3 स्टेजेज़ होती हैं। एक आपकी इनिशियल, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1000 स्टूडेंट्स ने अगर अप्लाई किया है तो उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे बेस्ड ऑन देयर सीजीपीएस, बेस्ड ऑन देयर यूनिवर्सिटी स्टैंडिंग्स, कि आप पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उसकी रैंकिंग क्या है, ये सब भी मैटर कर रहा होता है इसके अंदर। अ और बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स। तो ये इन सब की बेसिस पे वो एक इनिशियल स्क्रीनिंग कर लेंगे। इनिशियल स्क्रीनिंग करने के बाद उसकी फर्दर उसको इन डेप्थ फिर मतलब हर 1000 में से वो 500 को इनिशियल स्क्रीन मतलब इनिशियल स्क्रीनिंग करके उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब उन 500 के अंदर से वो अ, डिफरेंट स्टूडेंट्स लाइक सेलेक्ट करते हैं फॉर इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स विल बी अगर वो सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो 30 स्टूडेंट्स को एक इनवाइट भेजते हैं इंटरव्यू के, उसमें अपने इंटरव्यू में अपेयर होना होता है। अब इंटरव्यू उस प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कोर्स वर्क से रिलेटेड होता है। उसके कोर्स वर्क से जो उसके कोर्स वर्क से रेलेवेंट जो आपने चीज़ें बैचलर्स में पढ़ी होती हैं वो आपको सारी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आप एडवांस मैथमेटिक्स के कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको बेसिक मैथ्स जो आपने बैचलर्स में पढ़ी है, उसका सारा आपसे पूछते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कोर्स वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लाइक जिस तरह आपके पाकिस्तान में एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं, आप अ, ड्यूरिंग योर क्विज़ेज़ आप दे रहे होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको देते हैं। कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, एक सिनेरियो रख देते हैं कि ये सिनेरियो है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये आप 1-2 इंटरव्यूज़ देंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। सीवी को डायरेक्ट नहीं करवाते हैं, वो आपसे ऐसा कोर्स वर्क रिलेटेड करते हैं। और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और इस चीज़ में भी वो इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी देख के आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। There are so many questions, so I'm just shortlisting the question that I should address.
CGPA is important. I've already discussed. It's Adiba Kamar. It's उम, जी या इलेक्ट्रिकल मतलब इसमें हर फ़ील्ड फ्रॉम मेडिकल साइंसेज़, फ्रॉम बायोमेडिकल साइंसेज़ एंड बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज़, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्लाइड साइंसेज़ इन सब चीज़ों के लिए इस सब फ़ील्ड से रिलेटेड जो भी आपका कोर्सेज़ हैं, दे आर 200 मास्टर्स प्रोग्राम एंड यू कैन अप्लाई. देयर शुड बी सम प्रोग्राम्स रेलेवेंट टू योर फील्ड ऑफ स्टडी. तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें. Even there are even there even there are some generic programs as well related to the sports management. Uh, तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं. You can go for the like cosmetics के related भी 1-2 प्रोग्राम्स देखे थे मैंने. You can apply जिस प्रोग्राम में भी आपकी रेलेवेंसी आपकी प्रोफाइल की बन रही है. अगर पर्टिकुलर फील्ड से रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है प्रोफेसर से तो उम अ, आप किसी और से भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर अपनी प्रोफ़ाइल के लिए, अपनी प्रोफ़ाइल को ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए, अगर आपको उसी प्रोफ़ेसर से मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको डिफरेंट फ़ील्ड के भी सब मिल रहा है, अगर आपको कोई मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो है तो आप अ, उसको कर सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन सबमिट कर सकते हैं। अब बीइंग अ 7th सेमेस्टर जो आपका 7th सेमेस्टर है तो ऑफ़ कोर्स आप फ़िज़िक्स कर लो, आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और बैचलर्स थीसिस अगर जिस प्रोग्राम में आपने जिस फ़ील्ड में आपने आपने मास्टर्स करना है, तो उस थीसिस को उसके काफ़ी ज़्यादा उसकी रेलेवेंसी को मेंटेन करें, ताकि आप उसमें शो कर सकें। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन आप एट लीस्ट अपना थीसिस का रिसर्च एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं कि मैंने ये रिसर्च की है और ये इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा लिंक कर रही है। तो आप अपने उस थीसिस पे फ़ोकस करें, उसकी रिसर्च पे फ़ोकस करें, एवरीथिंग विल बी गुड। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए मुझे मेरी नज़र से कोई इंग्लिश रिलेटेड प्रोग्राम ऐसे गुज़रा नहीं है। लैंग्वेज एक एक ओवरऑल जन लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्राम्स उसके कैटलॉग में एरास्मस में मौजूद हैं। तो इसमें जो बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में आपको गाइडलाइंस कौन-सी हैं वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में जो एलुमनाई है लिंक्डइन पे आप उनको सर्च करके पूछ लें देन दे कैन गाइड यू बेटर। और आफ्टर डिग्री और नाउ यू कैन अप्लाई नाउ एज़ वेल लाइक इन 7th सेमेस्टर यू कैन अप्लाई। अ, तो 7th और 8th सेमेस्टर में अगर आप हैं, यू कैन अप्लाई एज़ वेल, लेकिन आफ्टर डिग्री तो आप कर ही सकते हैं। हाउ डू यू राइट अ मोटिवेशन लेटर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम? अच्छा, मोटिवेशन लेटर में एक जो जनरल आउटलाइन है, वो तो यही होती है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, वो आपके मतलब रीज़निंग पे होता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो इस प्रोग्राम से, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। वो एक स्टार्टिंग एक पंच लाइन से की जाती है कि इंटरेस्ट किस इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा और अ, आप अप्लाई अब इस इंटरेस्ट की वजह से अब आप अप्लाई कर रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में यू एक्सप्लेन योर बैचलर्स कोर्स वर्क मतलब वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी जो सीवी में हैं ऑलरेडी, या जो आपने अब दूसरी जगहों पे लिखी हैं, आपने उसकी एक स्टोरी बना के एक्सप्लेन करते हो सेकंड पैराग्राफ में कि ये कोर्स वर्क पढ़ा है और इसने इस तरह से आपका इंटरेस्ट अ, आपको इनसाइट मतलब एक इनसाइट्स दी हैं इस फ़ील्ड के बारे में और आपका इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ा है। और उसके साथ-साथ आप अपने उसी उसी पैराग्राफ में आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंस जो बैचलर्स का प्रोजेक्ट होता है, उसको भी डिस्कस करते हो, उसकी रेलेवेंसी को डिस्कस करते हो।
एंड देन थर्ड पैराग्राफ में आप अपना फ्यूचर रिसर्च गोल्स, अपने रिसर्च आइडियाज़ को सामने रखते हो कि आपके फ्यूचर रिसर्च गोल्स क्या हैं। उसको कैसे लेकिन उसकी एक पूरी पूरी एक प्रॉपर स्टोरी बना के आपने, और रिसर्च आइडियाज़ और रिसर्च गोल्स उस प्रोग्राम से रेलेवेंट होने चाहिए जिस प्रोग्राम में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख के आपने लिखने हैं। एंड देन लास्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द सोशल एडाप्टेशंस और मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है एरास्मस के अंदर, उसको डिस्कस कर, तो ये एक जेनेरिक आउटलाइन है, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं कि आपने इसी आउटलाइन को फ़ॉलो करना है। जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन लेटर यूनिक होगा, उतनी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करेगी। हाँ, इसमें आपने योगरेट किया हुआ तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर 10 सेमेस्टर भी हैं, ये अफ़ेक्ट नहीं करेगा आपकी एप्लीकेशन को। यूनिवर्सिटीज़ यूईटी टेक्सलाइज़ प्रेफर्ड और नॉट, यूनिवर्सिटी मैटर करती है आपकी एप्लीकेशन में, लेकिन इतना नहीं। सबसे पहले आपकी अपनी प्रोफ़ाइल मैटर कर रही होती है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाद में देखी जाती हैं। तो यूआईटी टेक्सला है या जो भी यूनिवर्सिटी है, इट्स ओके। अ, ओके, किसी ने लिंक शेयर किया लिंक्डइन का, उसमें चैट बॉक्स में यू कैन, जो लोग पूछ रहे थे वो हुँ, देख सकते हैं। आई गेस now the questions, the people are repeating same questions। सिर्फ एक क्वेश्चन एक नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट भी होता है क्या? बैंक स्टेटमेंट्स और ब्लॉक अकाउंट नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है देन यू डोंट नीड टू एनी सबमिट एनी बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट। सिर्फ आपने स्कॉलरशिप का जो आपको लेटर आपको इरास्मस की तरफ से इश्यू है, वो आप साथ लगाते हैं अपने फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पे, एंड हो जाता है। लेकिन मुझे जर्मनी का सीन नहीं पता। वो आप जर्मनी के किसी स्टूडेंट, क्योंकि मैं जर्मनी में, मेरा कोई सेमेस्टर था नहीं। तो अगर आपका पहला सेमेस्टर जर्मनी में है तो आई डोंट नो अबाउट इट। यू कैन सर्च इट ऑन लिंक्डइन। कोई जर्मनी में जिसका इरास्मस का पहला सेमेस्टर था, ही कैन गाइड यू बेटर कि जर्मनी के, क्योंकि मैंने ये इतना सुना है कि जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स इरास्मस में भी हैं। So I think कि सारे questions पूरे हो चुके हैं. Sir, thank you so much for taking the time to walk us through the Erasmus Mundus scholarship process so clearly. आपकी guidance हमारे लिए काफ़ी मुफीद रही. बहुत से हुँ, क्वेश्चंस हुँ। आपने हम सबके आंसर कर दिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी अल्लाह आपको कामयाबी दे आपके अगले जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉकिंग अस थ्रू इट। Thank you so much for inviting and giving me the opportunity to discuss these things. You're welcome. To our participants, thank you for joining us. We hope you today's session has helped you take one step closer to applying for life-changing opportunities like Erasmus Mundus. Don't forget to fill the feedback form, you receive your e-certificate, and follow us on Instagram and LinkedIn for your updates. Thank you. Thank you, sir.